give me few responses from your end whether I am audible and visible or not. Yes or no? Okay. So in previous class we have seen the examples related to substitution cipher. We have done the categorization of cipher in two categories, monoalphabetic, polyalphabetic. We have seen one basic cipher as an example of monoalphabetic cipher. It's nothing but your Caesar cipher. Second is polyalphabetic cipher, and the example is Playfair cipher. So you are having idea about the working of Caesar cipher and Playfair cipher. We have seen the examples related to it. So today we are going to view one more example of a polyalphabetic cipher. It's nothing but your Wigner cipher. That's an example of polyalphabetic. Polyalphabetic in the sense, even though we are having a repetitive alphabet, so cipher is going to replace a respective alphabet with a different alphabet or with a different character. So for same alphabet, if as an example, A is appearing twice or thrice, so it may be possible that your polyalphabetic cipher is going to substitute A first time by B, then again if A is appearing, it may be possible it's going to replace it by X or W or something else. So for every alphabet, substitution is done with a different alphabet. But in case of monoalphabetic, there is a fixed substitution. In case of polyalphabetic, substitution is done with a different alphabet or different characters. So we are going to view the example of Wigner cipher, and it's nothing but the extension of your Caesar cipher we may term, or it makes the utilization of your Caesar cipher. So we'll see the details related to Wigner cipher and how the content is getting encoded. So for encoding a content in Wigner cipher, first we have to prepare a matrix for Wigner, or it's termed or referred as a block or matrix for encode matrix or encode block for Wigner cipher. So matrix is simple. Simply you have to write the alphabet like this. Sometimes in exam they are asking questions on Wigner cipher for 2 or 3 marks. Like this up to Z. And on another side we have write up to Z like this. Then here you have to start with the So most important thing over here is you have to prepare this matrix. Generally in exam, if they are asking question on Wigner cipher, in your question paper itself they are going to provide you the matrix. So if matrix is not given, in that case you have to prepare this encode or decode matrix by your own. अब यहाँ पे जैसे B से स्टार्ट किए हैं तो आपका आखिरी यहाँ से अल्फाबेट होगा A. C से स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हुए जाएंगे और लास्ट अल्फाबेट आपका यहाँ पे होगा B एंड सो ऑन. यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट अल्फाबेट रहेगा C. इस प्रोसेस को आप जो है कंप्लीट करते हुए आएंगे. आखिरी में जैसे यहाँ पे जो है Z है तो Z से ही जो है स्टार्ट होगा. फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा A, B, C, D लाइक दिस, और इसको आप जो है आखिरी में कंप्लीट कर लेंगे. तो इस तरह का जो है आपको एक स्पेसिफिक जो है Wigner मैट्रिक्स जो प्रिपेयर करना है. इट्स ऑल्सो टर्म्ड और रेफर्ड एज एनकोड और डिकोड मैट्रिक्स.
इस एनकोड या डिकोड मैट्रिक्स का यूज करके आपको अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन की। तो first important requirement for encoding or decoding a message by using Vignere cipher is either to prepare this matrix or to get the availability of this matrix in a printed format। प्रिंटेड फॉर्मेट में या तो आपके पास मैट्रिक्स अवेलेबल हो या आप इसको प्रिपेयर करें, उस मैट्रिक्स का यूटिलाइजेशन करके आप जो है कंटेंट को एनकोड करें। तो एग्जांपल तौर पे जैसे अब यहाँ पे हम लेते हैं एक स्पेसिफिक जो है प्लेन टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं अटैक फ्रॉम इट। ठीक है, और एक कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, मतलब की आपको गिवन है, तो की इज जस्ट टेक एन एग्जांपल, इट्स हेलो। सिंपल आपको जो समझाने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा की यूज कर रहे हैं। सो फॉर एनकोडिंग अ कंटेंट बेस्ड ऑन PT and key through Vignere cipher, first what we have to do, we have to expand the given key, we have to write this key repetitively under this PT। तो अब जैसे ये आपका जो है PT है, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे अटैक लेते हैं पहले, या पूरा ही ले लेते हैं अटैक फ्रॉम इट। होप आई एम विजिबल? ठीक है, ये जो हमने प्लेन टेक्स्ट लिखा, प्लेन टेक्स्ट लिखने के बाद अब क्या करना है कि इस रिस्पेक्टिव की को जो है रिपीटेटिवली जो है राइट करना है, जिससे मतलब हर स्पेसिफिक प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट के नीचे आपका जो है की इंफॉर्मेशन आ जाए। यहाँ पे पहले हमने राइट किए HELLO। ठीक है, अब यहाँ इतने जो आपके अल्फाबेट्स जो बचे हुए हैं, तो हेलो जो की है जैसे आपका एग्जॉस्ट होता है फिर से उसको जो है रिपीट करना आपको स्टार्ट कर देना। अगेन वी आर गोइंग टू राइट इट HELLO। ठीक है, फिर से जो है मतलब यहाँ पे HELL। तो जब तक आपके पास प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट्स हैं जिनको आपको एनकोड करना है, तब तक आप क्या करेंगे कि उसके नीचे जो है आपके की में दिए हुए अल्फाबेट्स को जो कंटिन्यूअसली राइट करते जाना है। ठीक है, तो जैसे ही राइट हो जाते हैं तो उस केस में जो है आप क्या करेंगे कि आपके PT अल्फाबेट और की अल्फाबेट्स का जो है पेयर आप जो है फॉर्म करेंगे। तो एज ए एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला जो है पेयर है हमारा A and H। ठीक है, A and H जो है हमारा पहला पेयर है जिसको हमें एनकोड करना है, या पर्टिकुलरली प्लेन टेक्स्ट हमारा ये है, प्लेन टेक्स्ट के साथ जो हम की मिक्स कर रहे हैं, इस रिस्पेक्टिव एनकोड मैट्रिक्स का हम यूटिलाइजेशन करके जो है साइफर टेक्स्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो पहला जो अल्फाबेट ए है तो उसको आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मतलब आप जो है कॉलम उसका जो है फाइनलाइज कर लेंगे। इस रिस्पेक्टिव कॉलम में आपका पहला अल्फाबेट है, तो फर्स्ट वी आर फाइनलाइजिंग द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ योर PT अल्फाबेट, देन ऑन द बेसिस ऑफ योर की इंफॉर्मेशन और की अल्फाबेट दैट इज H, वी आर गोइंग टू फाइनलाइज अ रो। तो यहाँ कहीं तो भी आपका H होगा। ठीक है, तो H है इन द सेंस यहाँ से स्टार्ट वही होगा। विजिबिलिटी मैम उसमें आप चेंज कीजिए, हमारा दूसरा ID है ना, यहाँ पे आप टैग कीजिए। Students, just let me know whether I am audible and visible to all of you or not. Hope I am audible and visible. मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ या नहीं भाई, आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर, यस सर। यस ओके,
देखो बहुत सारी डिफिकल्टीज है बेटा, हम 3 या 4 जो है मेरे पास इस समय हॉटस्पॉट है। जियो फाइव है, आपका जो है मोबाइल का सिम है, कॉलेज कैंपस का नेटवर्क है, बट बीच बीच में जो है डिस्टर्बेंस होते जा रहा है, तो बार बार जो है नेटवर्क में हम स्विच कर रहे हैं। आप लोग जो है थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको जो है ऑडियो वीडियो मिल रहा है या नहीं। यस सर, मिल रहा है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। प्लेन टेक्स्ट को आपने जो है राइट किया है, जो राइट किया इन द सेंस गिवन है कि आपको गिवन है। प्लेन टेक्स्ट के नीचे आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली जो है आपके की इंफॉर्मेशन को जो राइट कर देंगे। इसके बाद में प्लेन टेक्स्ट का एक अल्फाबेट लेना है, की इंफॉर्मेशन का एक अल्फाबेट लेना है। प्लेन टेक्स्ट के अल्फाबेट को जो है यूज करेंगे कॉलम को लोकेट करने के लिए, कॉलम को फाइनलाइज करने के लिए। की इंफॉर्मेशन में दिए हुए अल्फाबेट को आप यूटिलाइज करेंगे रो को जो है फाइनलाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे हमारा कॉलम जो है फाइनल हुआ ए, रो हमारा जो है फाइनल हुआ एच, तो अब जैसे हमें इसका जो है सब्स्टिट्यूशन करना है, मान चलिए इस रिस्पेक्टिव अल्फाबेट को, इस रिस्पेक्टिव प्लेन टेक्स्ट को हमें जो है रिप्लेस करना है, तो इस रिस्पेक्टिव कॉलम और रो में इंटरसेक्शन जहां पे भी होता है, तो वहां पे जो भी आपका प्लेस्ड अल्फाबेट है उस कंसेंट अल्फाबेट से हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो यहाँ अगर हमें सीटी राइट करनी है ए और एच की, इस दोनों की, ए और एच हमारा पहला पेयर है, तो इसका सीटी इंफॉर्मेशन क्या हो गया, इट्स नथिंग बट योर एच। सेकेंड है टी एंड ई, तो टी एंड ई है इन द सेंस यहाँ कहीं तो भी टी होगा। इसका जो कॉलम आपने फाइनलाइज किया, रो आप जो है फाइनलाइज कर रहे हैं, तो टी और ई जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जो आपका अल्फाबेट है उस रिस्पेक्टिव अल्फाबेट से आप जो है सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। इस प्रोसेस को आप जो है कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब एक तरह का शिफ्ट है, इट्स नथिंग बट योर सीजर साइफर। ठीक है, सीजर साइफर जैसे ही है, बट यहाँ पे 10 टाइम शिफ्ट आपके पास में अवेलेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड की इंफॉर्मेशन यू आर सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग योर अल्फाबेट। तो अल्फाबेट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है, पॉली अल्फाबेटिक का एग्जाम्पल है, ये जो है आपका विग्नियर साइफर है। तो इसे जो है थोड़ा सा आप जो है बना करके देखिए। होप यू हैव क्रिएटेड दिस मैट्रिक्स और एनकोड मैट्रिक्स ऑफ विग्नियर साइफर। सभी ने बना लिया है प्रॉपरली, यस और नो? किसी को कोई डाउट है क्या? एकदम सिंपल सा साइफर है, आपको जो है विग्नियर एनकोड या डिकोड मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है इस मैनर में, और मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के बाद में गिवन पीटी इंफॉर्मेशन के नीचे प्रोवाइडेड जो है की इंफॉर्मेशन को जो है रिपीटेटिवली जो है राइट करना है। पीटी और की अल्फाबेट्स का जो है पेयर फॉर्म करना है। एनकोड के दौरान हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे कॉलम फाइनलाइज करने के लिए, कि इंफॉर्मेशन में जो भी आपका अल्फाबेट है उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे रो को जो है पर्टिकुलर फाइनलाइज करने के लिए। तो पीटी जिस स्पेसिफिक कॉलम में है, आपका की जिस रिस्पेक्टिव रो में है, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस इंटरसेक्ट लोकेशन से के अल्फाबेट को हम रीड करेंगे पीटी फॉर दैट रिस्पेक्टिव पेयर। ठीक है, उस कंसेंट पेयर के लिए जो है हम उसे काम करेंगे पीटी, और उस पीटी को राइट करेंगे। तो इस प्रोसेस को जो है एज इट इज हम जो है करते जाएंगे। पीटी जो है फाइनलाइज करेंगे, पीटी को जो है डेस्टिनेशन एंड पे जो है डाइवर्ट कर दिया जाएगा। डेस्टिनेशन एंड पे डाइवर्ट करने के बाद में नेक्स्ट टास्क क्या आएगा, पीटी जैसे डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो डेस्टिनेशन यूजर पीटी को जो डिकोड करने के लिए क्या करेगा? एनीवन? जैसे मान चलिए कि ए और एच जो है, इसका जो है पीटी एच है, इसको जो है हमने भेज दिया डेस्टिनेशन यूजर के पास में। डेस्टिनेशन यूजर चाहता है कि उसे जो है डिकोड करे, तो डिकोड करने के लिए उसे मालूम है दिया जो साइफर हम यूज कर रहे हैं इट्स नथिंग बट योर विग्नियर साइफर। So definitely he or she is going to prepare this Vignier encode or decode matrix. After that, what he is going to do in below or above your received CT, he or she is going to write the key information. तो key information जैसे यहाँ पे hello है, तो destination end से भी क्या किया जाएगा, साइफर टेक्स्ट के नीचे आपका जो है की इंफॉर्मेशन जो है राइट कर दिया जाएगा। तो की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मतलब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि भैया की इंफॉर्मेशन में मतलब जो है पहला आपका अल्फाबेट एच है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एच के जो है रो में आप जो है ढूंढते हुए जाएंगे कि आई कौन सी जगह पे है।
ठीक है। तो आई जिस रिस्पेक्टिव कॉलम में आएगा तो उस कंसेंट कॉलम के जो है पर्टिकुलर अल्फाबेट को आप जो है टर्न कर लेंगे ऐसे पीटी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया हुआ है तो। आप लोगों को क्लियर है या नहीं? जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो, रोल नंबर 1 to 10। रोल नंबर 1 to 10 के बीच में जो भी स्टूडेंट हैं अपने वीडियोस को टर्न ऑन करेंगे और मुझे रिस्पॉन्स देंगे। अप टू 20, नंबर 1 to 20। सर विजिबल है। हाँ विजिबल है, लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं विग्नियर साइफर से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई हैं या नहीं? हाँ या ना? सर डिकोडिंग, यस सर सर, यस डिकोडिंग हाँ, प्रोसेस। डिकोडिंग प्रोसेस को बता रहे हैं। जैसे मान चलते हैं कि अभी आपको जो है मैं समझाने के लिए काम करता हूँ भैया। ये जो है ए और एच का जो है हमारा सीटी आया एच, फिर मान चलते हैं ऐसे ही, मतलब मैं आपको राइट कर दे रहा हूँ ए बी सी डी, इस तरह का जो है हमारा सीटी है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस वन इज और सीटी। इस सीटी को हम लोग जो है डेस्टिनेशन एंड पे जो है डाइवर्ट कर दिए। तो डेस्टिनेशन एंड पे आने के बाद में जैसे सीटी ये है एच ए बी सी डी, ये मतलब रियल नहीं है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ये सीटी रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद में अब उस रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन को पता है कि भाई हम यूज कर रहे हैं विग्नियर साइफर। ठीक है, विग्नियर मैट्रिक्स को प्रिपेयर करेगा। डेस्टिनेशन एंड को कौन सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा? की वैल्यू। तो की वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया गया है। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस रिस्पेक्टिव जो है की वैल्यू को नीचे राइट करेगा, एच ई एल एल ओ, इस तरह से जो है राइट करेगा। तो आपको मालूम है कि इंफॉर्मेशन का यूज हम किस पर्पस के लिए किए हुए हैं? रोज को लोकेट करने के लिए। ये आपका सीटी है, इस की का यूटिलाइजेशन करके आपको जो है उसे जो है पीटी में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हमने जो है पेयर बनाया एच एंड एच। तो हम एच एंड एच का जो है पेयर बन रहा है, इससे हमें जो है सीटी से कोई लेना देना नहीं वैसे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है देख रहे हैं ये जो है एच है। पहले जो हम फाइनलाइज कर लिए, डिसाइफर करते समय हम क्या कर रहे हैं कि की इंफॉर्मेशन का, की अल्फाबेट का जो है यूटिलाइजेशन करके रो फाइनलाइज कर रहे हैं। रो फाइनलाइज करने के बाद उस रो में ढूंढते हुए जाएंगे कि भाई एच कौन से कॉलम में है। तो एच कौन से कॉलम में है? पहले कॉलम में है। तो पहले कॉलम का जो है पर्टिकुलरली क्या रहेगा आपका पीटी ए। तो इस तरह से ए राइट कर देंगे। तो मेनली क्या करना है, जो आपका सीटी इंफॉर्मेशन है, सीटी इंफॉर्मेशन के नीचे जो है की राइट करना है। की के अल्फाबेट का यूटिलाइजेशन करके आप जो है रो को फाइनलाइज करेंगे। रो को फाइनलाइज करने के बाद में देखेंगे कि उस रो में जो है कंसेंट जो है सीटी का अल्फाबेट कौन से पर्टिकुलर कॉलम से लोकेट हो रहा है। और जैसे ही लोकेट होता है उस कंसेंट कॉलम के अल्फाबेट से उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर देना। अब एग्जाम्पल तौर पे ए और ई लेते हैं। ठीक है, तो ए और ई लेते हैं। ये जो है यहाँ पे हमारा जो है ए है, ई जो है आप ढूंढते हुए आएंगे, यहाँ पे है, इससे जो उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान चलते हैं नेक्स्ट है हमारा बी एंड एल। तो बी यहाँ पे है, ढूंढते हुए आए, जहाँ कहीं पे भी एल होगा तो उस रिस्पेक्टिव अल्फाबेट से जो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। इस प्रोसेस को जो अडॉप्ट करेंगे, मतलब एग्जैक्टली जो रिवर्स प्रोसेस है। सेंटर एंड पे हम क्या कर रहे हैं, पहले जो है हम फाइनलाइज कर रहे हैं कॉलम। तो कॉलम जो है फाइनलाइज कर रहे हैं। कॉलम फाइनलाइज करने के बाद में जो है रो को जो है हम जो है फाइनलाइज करते हैं, और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करते हैं उस रिस्पेक्टिव जो है अल्फाबेट से हम सब्स्टिट्यूशन कर दे रहे हैं। आता है, और स्टूडेंट्स जो है मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं। रीजन ये होता है कि विग्नियर मैट्रिक्स जो है आपके क्वेश्चन पेपर के जो कंप्लीट पेज पे जो प्रिंट करके यूनिवर्सिटी से जो आता है, और आपको पता नहीं होता है कि किस पर्पज के लिए जो है ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का। तो पीटी गिवन रहेगा, सीटी गिवन रहेगा, या हो सकता है सिर्फ पीटी दिया रहे, आपको बोला जाए की के बेसिस पे जो है साइफर टेक्स्ट जो है फाइंड आउट करने के लिए। तो गिवन पीटी के बेसिस पे पीटी अगर फाइंड आउट करना है, पीटी के नीचे जो आप पूरे जो है अल्फाबेट को, की के अल्फाबेट को जो है राइट कर दीजिए, पेयर फॉर्म कीजिए, और पेयर फॉर्म करने के बाद में फर्दर जो है
मतलब पीटी के बेसिस पे जो है कॉलम को जो है लोकेट कर लीजिए, पी के बेसिस पे जो है रो को लोकेट कर लीजिए, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस रिस्पेक्टिव इंटरसेक्ट पॉइंट के अल्फाबेट को आप जो है कंसेंट पेयर का जो है पीटी जो है स्पेसिफाई करके राइट कर दीजिए। तो डाउट क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. सीटी के बेसिस पे पीटी फाइंड आउट करना इन द सेंस एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस है। सीटी के नीचे हम इंफॉर्मेशन को राइट कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करके रो को जो है फाइनलाइज करते हैं, रो में देखते हैं कि सीटी वाला अल्फाबेट जो है कौन से जो है कॉलम में प्रेजेंट है और उस कंसेंट कॉलम के वैल्यू को राइट कर देते हैं एज ए सीटी। इसे आप जो है बना करके देखिए, काफी जो है सिंपल है, काफी इजी है और जनरली जो है विग्नियर साइफर जो है 2 नंबर वगैरह की आता है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं जो आपके ट्रांसपोजिशन साइफर्स हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल जो है इसमें क्या किया जा रहा है? एनीवन? देखो प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया है कि या तो जो है आपके साइफर्स सब्स्टिट्यूशन बेसिस पे वर्क करेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे जिसमें वो एस बॉक्सेस का यूटिलाइजेशन करते हैं, या ट्रांसपोजिशन प्रिंसिपल को जो फॉलो करेंगे, या पर्टिकुलरली वो आपका दोनों का जो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो वी हैव सीन दैट आइदर दे इज एस बॉक्स। एस बॉक्स का मतलब क्या हुआ? एस बॉक्स का क्या मीनिंग होता है? एस बॉक्स मतलब सब्स्टिट्यूशन बॉक्स। ठीक है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से रिलेटेड जो है बेसिक एग्जांपल्स हमने देखे। एक तो आपका जो है सीजर साइफर, दूसरा जो है आपका प्लेफेयर साइफर, थर्ड हम लोगों ने देखा है विग्नियर साइफर। एकदम जो है बेसिक एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हैं। तो तीनों जो है साइफर्स में किसी कोई डाउट है एनक्रिप्शन करने में, डिक्रिप्शन करने में? किसी कोई डाउट है? प्रीवियस क्लास में मैंने प्लेफेयर साइफर से रिलेटेड जो एग्जांपल्स दिए थे उसको आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं? यस सर। सभी ने कर लिया है? ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है मतलब आपका जो है सब्स्टिट्यूशन को ही जो हम एस बॉक्सेस जो है काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोजिशन साइफर। तो ट्रांसपोजिशन साइफर में हम यूज करते हैं टी बॉक्सेस का। टी बॉक्स ट्रांसपोज बॉक्स इनपुट देंगे, आउटपुट जो है हमको मिलेगा ट्रांसपोज आउटपुट मिलेगा। एस बॉक्सेस या जो है टी बॉक्सेस का यूज किस लिए हम कर रहे हैं? जो भी हम पीटी दे रहे हैं उस रिस्पेक्टिव पीटी को एस बॉक्स जो है स्क्रैम्बल करके जो आउटपुट रिजल्ट करता है। स्क्रैम्बल कर रहे हैं मतलब ये स्क्रैम्बलिंग जो है सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हो रही है। उसी मैनर में टी बॉक्स को जो है हम इनपुट देंगे, वो उसे जो है स्क्रैम्बल करेगा, ट्रांसपोज करेगा, उनके पोजीशंस को शफल करेगा। So rather than substituting an alphabet with another alphabet, either fixed alphabet or multiple alphabets, your transposition is going to shuffle the position of inputted alphabet. इनपुट में जो भी अल्फाबेट आप देंगे उन अल्फाबेट के पोजीशंस को जो है शफल करेगा। ठीक है, तो शफलिंग होगी, ट्रांसपोज होगा। एग्जांपल तौर पे जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, राइट करते हैं हेलो, तो हो सकता है कि वो आउटपुट रिजल्ट करे तो इस तरह का जो है आपको आउटपुट रिजल्ट करेगा। तो आउटपुट में क्या हो रहा है देख रहे हैं, जैसे मतलब एच की पोजीशन कहीं चली गई, ओ की पोजीशन कहीं पे आ गई। तो जो आपके इनपुटेड अल्फाबेट्स हैं उनको ट्रांसपोज करेगा, उनके पोजीशंस को जो है चेंज करेगा। इसलिए जो है इसको जो है काम किया जाता है ट्रांसपोजिशन साइफर। और ट्रांसपोजिशन साइफर है इन द सेंस वो टी बॉक्स का यूटिलाइजेशन करेगा। टी बॉक्स आपका जो है मतलब ट्रांसपोजिशन बॉक्स होता है, या कई बार इसको जो है परम्यूटेशन बॉक्स भी जो है काम किया जाता है। तो टी बॉक्सेस या पी बॉक्सेस का यूज करके आप अपने इनपुटेड जो है वैल्यूज को ट्रांसपोज करते हैं, उनके पोजीशन को जो है चेंज करते हैं। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसपोजिशन का। तो द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ योर ट्रांसपोजिशन साइफर इज रेलफेंस साइफर।
तो रेल फ्रेंच साइफर जैसे नेम है, नेम इंडिकेट कर रहा है, जैसे इसका जो है मतलब नेम जो है दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फेंसिंग डन नियर रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के नजदीक पास आप जैसे जाते हैं तो देखेंगे इस तरह का जो है मतलब जिगजैग तरह का जो है कहीं आपको फेंस दिखता है, ठीक है। तो इस तरह के जो है जिगजैग फेंस का यूटिलाइजेशन करके साइफर वर्क करता है, इसलिए इसे जो है टर्म किया जाता है रेल फ्रेंच साइफर। वर्किंग इसका सिंपल है। अब इस वॉकिंग के केस में क्या होगा कि जो भी आपको प्लेन टेक्स्ट एनकोड करना है, एनक्रिप्ट करना है, उसे जो है आपको इस जिगजैग फ्रेंच के ऊपर में राइट कर देना है, और राइट करने के बाद रो वाइज जो है साइफर टेक्स्ट को रीड कर लेना है। तो अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल दैट गिवन PT इज अटैक फ्रॉम ईस्ट एट डॉन। तो ये जो है आपका जो है प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। इस प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को हमें एनकोड या एनक्रिप्ट करना है, साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस करना है। साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन प्रिंसिपल। अभी ट्रांसपोजिशन प्रिंसिपल में इन अल्फाबेट्स को हम ट्रांसपोज करेंगे। जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं इनपुट में, उतने ही अल्फाबेट्स जो सीटी में जो है प्रोड्यूस करेगा एज आउटपुट, बट इनके जो पोजीशन जो है शफल हो जाएंगे। तो पोजीशन शफल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं रेल फ्रेंच साइफर। तो एक आप जो है फ्रेंच प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हम फ्रेंच प्रिपेयर कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के नजदीक पास जो रेलवे लाइन के अगल बगल जो है फ्रेंच होती हैं, आज भी आप देखेंगे तो इस तरह की जो है जिगजैग फ्रेंच आपको जो है दिखती हैं, और इस फ्रेंच का जो है आपका साइफर जो है यूज करता है, इसलिए इसे जो है नेम दिया गया है रेल फ्रेंच साइफर। तो जिगजैग जो है स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर लेंगे। अब आपके जो PT है, जो गिवन आपका प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, उस कंसेंट प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को इन रिस्पेक्टिव जो है फ्रेंच के जो है सीट पे आप जो है राइट कर देंगे। तो यहाँ A T T तो देखिए अब इस फ्रेंच के ऊपर में हमने प्रोवाइडेड जो है प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को जो है राइट कर दिया। अब राइट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो है साइफर टेक्स्ट रीड करना है। इस गिवन PT को जो है हमने फ्रेंच के ऊपर राइट किया। फ्रेंच के ऊपर राइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, रो वाइज जो है साइफर टेक्स्ट को रीड कर लेंगे। पहला रो हम जो है रीड कर रहे हैं CPFO ESADW, ठीक है। तो पहला जो है रो आपने रीड कर लिया। नेक्स्ट टास्क क्या है, बॉटम जो है रो को आप जो है रीड कर लीजिए, या बॉटम में जो आपके फ्रेंच के पिक्स जो भी हैं कौन से, उसके ऊपर में रिटर्न इन्फॉर्मेशन को आप जो है रीड कर लीजिए। तो TAKRMAECAN, ये जो है आपका साइफर टेक्स्ट हो गया, ठीक है। इस साइफर टेक्स्ट को जो आप डेस्टिनेशन एंड पे जो है डाइवर्ट कर देंगे। डेस्टिनेशन एंड पे डाइवर्ट होने के बाद में जैसे मान चलिए कि उस डेस्टिनेशन यूजर को इसे जो है डिसाइफर करना है, तो डिसाइफर करने के लिए आप स्पेसिफाई कर दिया रेल फ्रेंच साइफर हम यूज कर रहे हैं। तो डेस्टिनेशन यूजर क्या करेगा, नंबर ऑफ अल्फाबेट को काउंट करेगा, एग्जैक्टली जो है 2 से उसको जो डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद में पहले जो है डिकोड करने के लिए फर्स्ट लाइन जो है राइट कर देगा पिक्स के ऊपर में, और रिमेनिंग जो भी अल्फाबेट्स हैं बॉटम में राइट कर लेगा। और राइट करने के बाद में फिर जो है PT को जो है PT में कन्वर्ट करने के लिए वो जो है कंटेंट को ऐसे रीड करेगा, मतलब जिगजैग फैशन में। तो एनकोड के दौरान हम क्या कर रहे हैं, जो आपका फ्रेंच है उसके ऊपर जो है कंटेंट राइट कर रहे हैं, और PT में कन्वर्ट करने के लिए रो वाइज रीड कर ले रहे हैं। डेस्टिनेशन एंड पे जाने के बाद में जो भी PT है उस PT को PT में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रेंच प्रिपेयर करेंगे, रो वाइज कंटेंट राइट करेंगे, और PT जो है रीड करने के लिए जो है फ्रेंच का जो जिगजैग आपका स्ट्रक्चर है उस जिगजैग स्ट्रक्चर को जो रीड कर लेंगे।
ओवरऑल एग्जैक्टली जो है रिवर्स प्रोसेस जो है डेस्टिनेशन एंड से किया जाता है रेफरेंस साइफर के केस में। किसी को कोई डाउट है? सॉरी, नो सर, नो सर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, आप लोग एक स्पेसिफिक जो है प्लेन टेक्स्ट हम दे रहे हैं, उसको जो है आप एनकोड कर दीजिए रेफरेंस साइफर का यूज करके। तो एयरक्राफ्ट विल फ्लाई टू न्यू दिल्ली, ये जो है आपका प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। इस प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को आप जो है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए रेफरेंस साइफर का यूज करके, एकदम सिंपल है। और यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि अल्फाबेट्स वही हैं, उनका जो है ट्रांसपोजिशन हो रहा है, उनकी जो पोजीशन आपकी जो है शफल हो रही हैं, उनको जो आप एक तरह से जो है ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसीलिए इसको जो है या तो ट्रांसपोजिशन या की बॉक्स जो है काम किया जाता है, या परमुटेशन या पी बॉक्स जो है हम काम करते हैं। ठीक है, तो चेक कर लीजिए एक बार, इसको जो है बना करके देख लीजिए, किसी कोई डाउट हो तो हमें बताएं। सर सिर्फ सिटी में कन्वर्ट करना है क्या? हाँ सिर्फ हाँ, सिटी में पीटी में कन्वर्ट कन्वर्ट कीजिए, सिटी में कन्वर्ट कीजिए, सिटी गिवन है तो पीटी में कन्वर्ट करके देखिए। अगर सिटी गिवन रहेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले सिटी बनाइए, उसके बाद जो है देखिए पीटी में कन्वर्ट करना भी तो ऐसे ही है, सिंपली जो है मतलब अगर सिटी गिवन है तो सिटी गिवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेंस प्रिपेयर करेंगे, रो वाइज जो है सिटी को राइट कर देंगे, और राइट करने के बाद जो है आपके जो है सेंस के अकॉर्डिंग कंटेंट को रीड करेंगे, इन द सेंस तो पीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंडर एंड पे जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, मतलब पहले हम कंटेंट को इनकोड कर रहे हैं, इन द सेंस जिगजैग पैटर्न में जो है कंटेंट को हम राइट कर रहे हैं, रो वाइज कंटेंट को रीड कर रहे हैं जो कि सीटी प्रोड्यूस हो रहा है। सीटी को डेस्टिनेशन एंड पे भेजते हैं, डेस्टिनेशन यूजर क्या करेगा, अगेन जो है सेंस प्रिपेयर करेगा, सेंस प्रिपेयर करके रो वाइज कंटेंट राइट करेगा, और प्लेन टेक्स्ट को जो है जिगजैग पैटर्न में सेंस के जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में रीड करके जो है सीटी जो है नोट कर लेगा। क्लियर है? Now we'll see the details related to row column cipher. Excuse me, sir. हाँ, कुछ कर रहे हैं? Excuse me, sir. Sir, अल्फाबेट्स जो है ये ऑड नंबर पे, जैसे यहाँ पर 25 है, तो डिकोडिंग जब हम लोग करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट रो में लेंगे उसके? अरे देखो, ये सब जो है बाबा आदम के जमाने के जो है साइफर हैं। हाँ, पहला जो आपने देखा है वो जो है बिफोर क्राइस्ट जो है बना हुआ है 2000 साल पहले, वैसे ही ये भी है। तो इतना तो जो है दिमाग लगाएगा ही बंदा कि भाई कुछ हमें जो प्रोविजन करना है, सिस्टम में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंटेशन इसका पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को अगर आपको इवन करना है तो उस केस में आखिरी में जो है Z या X जो है ऐड कर देंगे, जिसका लैंग्वेज रेगुलरिटी कम रहता है। क्लियर है? जैसे मान चलिए कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपके जो है 7 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं या 11 हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो जो इवन हो जाए, तो उस केस में एक एडिशनल अल्फाबेट एंड में आप ऐड कर दीजिएगा। वो हो सकता है Z रहे या पर्टिकुलरली X रहे, जिसकी लैंग्वेज रेगुलरिटी कम होगी। क्लियर हो गया? थिंग्स आर क्लियर? हाँ, ठीक है। तो इसको जो है आप चेक कर लीजिएगा। और एयरक्राफ्ट विल फ्लाई टू न्यू दिल्ली, इसका जो है आप सीटी बनाइएगा। सीटी को जो है फिर जो है चेक करके देखिए कि कैसे जो है सीटी में कन्वर्ट होता है। तो एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या है कि जिगजैग पैटर्न वाला जो सेंस आपको ड्रॉ करना है, सीटी में कन्वर्शन करना है। तो आप कंटेंट को जो है सेंस के अकॉर्डिंग जो है राइट कीजिए, रो वाइज रीड कर लीजिए, सीटी बन जाएगा। इनके सीटी गिवन है, आपको पीटी में कन्वर्शन करना है तो कैसे जो है सेंस ड्रॉ करेंगे, सेंस के ऊपर रो वाइज जो है कंटेंट आप राइट करेंगे,
जो कि डेस्टिनेशन इनका काम है, रो वाइज कंटेंट राइट करेंगे, उसके बाद जो है प्लेन टेक्स्ट को जो है सेंस के अकॉर्डिंग जो है रीड कर लेंगे। सो होप थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? यस सर, यस ठीक है, तो हम आगे बढ़ते Yes, sir, हैं। yes. नेक्स्ट जो आपका जो है साइफर है इसका रो कॉलम साइफर। रो कॉलम साइफर जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, मतलब रोज और कॉलम्स का हमें यूज करना है एनकोड या डिकोड के लिए, और इसका यूटिलाइजेशन करके जो है हम सीटी या पीटी जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है प्रिपेयर करते हैं। तो एक पहले जो है सिंपल से जो हम एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मान के लिए कि हमारा जो की इंफॉर्मेशन है वो जो है हम काम करते हैं 2, 4, 1, 3 एंड 5, ये जो हमारा की इंफॉर्मेशन है, जस्ट कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, एक जो है पीटी हमारा है, इट्स नथिंग बट यूर अटैक फ्रॉम इट। ये जो है पीटी इंफॉर्मेशन है। तो रो कॉलम के केस में हमें क्या करना है, गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है हमें फाइनलाइज करना है कि मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर होगा। तो जो आपका की इंफॉर्मेशन रहेगा, की इंफॉर्मेशन आपको इंडिकेट करता है कि आपके मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, 4, 1, 3, 5। ठीक है, तो 2, 4, 1, 3, 5 है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई इसमें जो है हमारे पास में जो की इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं कि हमारा जो भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स प्रिपेयर होगा, इनकोड या डिकोड मैट्रिक्स, उस रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स में जो 5 कॉलम रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर लिए 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इस रिस्पेक्टिव प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को जो रो वाइज राइट करते हुए जाना है जब तक कि ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होता है। तो अब यहाँ हम राइट करते हैं अब यहाँ पे देखिए आपका जो है प्लेन टेक्स्ट का जो भी पर्टिकुलर कंटेंट है, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए। यहाँ आपको दिख रहा है कि भाई एक स्पेसिफिक अल्फाबेट आप जो है आपके पास में नहीं है, मैट्रिक्स आपका जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आखिरी में आप क्या राइट कर दीजिए, एक्स राइट कर दीजिए या जेड राइट कर दीजिए। तो ऐसे स्पेसिफिक अल्फाबेट को राइट किया जाता है जिसका लैंग्वेज रेगुलरिटी जो है, जिसका ऑकरेंस जो है अल्फाबेट्स का कम होता है। तो एक्स और जेड जो है जनरली जो है प्रीफर किए जाते हैं। अब अगला टास्क हमारा क्या है, हमने क्या किया, सिंपली जो है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन की वी हैव फाइनलाइज द नंबर ऑफ कॉलम। जो की है, की के बेसिस पे कॉलम को हम लोगों ने फाइनलाइज किया। कॉलम फाइनलाइज करने के बाद में अगला काम हम लोग क्या कर रहे हैं कि की में जो आपका सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है साइफर टेक्स्ट को हम रीड कर लेंगे। तो पहला जो है की में जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, 2। तो 2 में 2 वाले जो है कॉलम को हम रीड कर लेंगे। तो हमने राइट किया टी एफ ए। ठीक है, नेक्स्ट किसका जो है ऑकरेंस हो रहा है, 4 का। तो 4th कॉलम में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको रीड कर लिए, ए ओ सी। देन आपका फर्स्ट कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पे ए के ई। नेक्स्ट कॉलम इज थर्ड, सी आर एस। इसके बाद जो है फिर से आपका जो है 5th कॉलम है, तो सी एम एक्स है। इस तरह से आपने क्या किया, साइफर टेक्स्ट को रीड कर लिया। तो इस रिस्पेक्टिव जो है प्लेन टेक्स्ट का कंसर्न जो है की के बेसिस पे जो आपका साइफर टेक्स्ट प्रिपेयर हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। रो कॉलम साइफर के केस में की के बेसिस पे कॉलम्स को आप फाइनलाइज करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स फाइनलाइज होने के बाद में आप अपने प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को जो रो वाइज राइट कर देते हैं। रो वाइज राइट होने के बाद में फर्दर आप क्या करेंगे कि की में दिए हुए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है कॉलम के इंफॉर्मेशन को जो है 1 by 1 रीड कर लेते हैं। ये जो साइफर टेक्स्ट आपका जो है बन जाएगा। इस कंसर्न साइफर टेक्स्ट को आप डेस्टिनेशन यूजर को जो है हैंड ओवर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे थ्रू नेटवर्क। You are going to provide the key information to that respective destination user.
you are going to specify that you have done the utilization of row column cipher for carrying out the encryption process. तो डेस्टिनेशन क्या करेगा, उस सीटी को जो डिकोड करेगा, तो डिकोड करने के लिए उसका टास्क क्या रहेगा, की में दिए हुए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है कॉलम वाइज जो है वो कंटेंट को राइट करेगा। तब जैसे मान चलिए कि की आपने दिए है 24135, तो 24135 इन द सेंस वो पहले जान जाएगा ये जो है सेकंड कॉलम का इंफॉर्मेशन है, ये जो है फिर आपका जो है फोर्थ कॉलम का इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट कॉलम का इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो डेस्टिनेशन यूजर जो है सीटी को डिकोड करने के लिए, सीटी को डिसाइफर करने के लिए रिसीव्ड जो है इंफॉर्मेशन को कॉलम वाइज जो है राइट करेगा, कॉलम के अकॉर्डिंग जो है की में दिए हुए कॉलम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट को जो है कॉलम वाइज राइट करेगा, और उसके बाद फिर फर्दर क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट को जो है रो वाइज जो है रीड कर लेगा। ठीक है, एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस। सेंडर एंड पे जो है इनकोड कर रहे हैं, इन द सेंस हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज राइट करते हैं, कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, सीटी प्रोड्यूस करते हैं। डेस्टिनेशन एंड से सीटी जाने के बाद में सीटी को जो है कॉलम वाइज राइट किया जाएगा, रो वाइज रीड करके जो है सीटी जो है गेन किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को जो आप अडॉप्ट करके इजियर वे में सीटी का पीटी में कन्वर्शन कर सकते हैं, या डेस्टिनेशन एंड से जो है डेस्टिनेशन एंड से जो है रिसीव्ड सीटी को पीटी में कन्वर्ट करते हैं, या सेंडर एंड पे जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है पीटी जो है उसको सीटी में कन्वर्ट करते हैं। किसी कोई इसमें डाउट है क्या? एकदम सिंपल प्रोसेस है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। नीचे होगा बॉटम में, 2 मिनट में। हाँ बोलिए सर 11 बजे एग्जाम चालू होने वाला है। कौन सा? सर आपका ही। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? सर फिर वो हैंग होता है सर, आधे घंटे का ही दिए हो आप। नहीं बेटा हैंग नहीं होगा, घबराओ मत। अब तो न्यू सर्वर पे हम लोग जो स्विच कर गए हैं कि हो रहा है हैंग अभी भी। थोड़ा सा जो हम आपको जो अपडेट कर दे रहे हैं, क्योंकि जो आज पढ़ाएंगे उसी बेस पे जो है क्वेश्चंस भी हैं। तो रो कॉलम साइफर यहाँ पे जो है अब एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसको आपको जो बनाना है। सेम जो है अटैक फ्रॉम एट डॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स एडमिरल। तो एग्जाम में कई बार ऐसा जो है क्वेश्चन आता है, की इंफॉर्मेशन आपको जो दे दी गई है, एडमिरल इज ए की। ठीक, अब इस रिस्पेक्टिव एडमिरल की का यूटिलाइजेशन करके आपको जो है इस प्लेन टेक्स्ट को जो है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप जान रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड की इंफॉर्मेशन। तो कितने जो है यहाँ पे कॉलम है, टोटल 7 अल्फाबेट है, इन द सेंस 7 कॉलम है। अब इन अल्फाबेट के बेसिस पे जो है कॉलम के सीक्वेंस को जो हमें फाइनलाइज करना है। तो कॉलम के सीक्वेंस को फाइनलाइज करना है इन द सेंस जो आपके अल्फाबेट है उनकी जो है पोजीशंस जो होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको जो है फाइनलाइज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है नंबरिंग करते हैं। तो अब जैसे पहले आपका ए का ऑकरेंस हुआ है, तो ए जो है मतलब आया है इन जैसे, तो पहला ही आपका जो अल्फाबेट होता है। इनके जैसे डी होता है और बाद में ए होता है, तो भी जो हम क्या करते हैं पहले देखते हैं ए कहाँ पे है, ए प्रेजेंट रहता है तो उसको नंबर देते, नहीं तो नहीं देते। तो एडमिरल में ए जो है आपका पहला है तो इसको नंबर हमने दिया 1। फिर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ए का ऑकरेंस है तो इसको जो है नंबर दे दिए 2। डी चेक किए है क्या, नहीं है, सी नहीं है, डी है इन द सेंस 3, ई एफ जी एच आई जो है यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6 एंड 7। ये जो आपका सीक्वेंस बन गया 1 3 6
472। तो जो भी गिवन आपका की इंफॉर्मेशन है, आइदर इट्स न्यूमेरिक वैल्यू और सम टेक्स्ट और सम अल्फाबेट, तो गिवन अल्फाबेट को जो है आप क्या करेंगे, नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। किसी अल्फाबेट का आकरस जो है ट्वाइस हो रहा है, तो उस केस में पहला जो भी आपका अल्फाबेट रहेगा वो उसका नंबर जो है मतलब प्रीवियस नंबर रहेगा। जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेट है मतलब ए जो है पहले जो पोजीशन पे आ रहा है। फिर से ए आया इन द सेंस उसको जो 2 नंबर दिए, सी नहीं है, डी आ रहा है इन द सेंस 3 दिए। फिर ऐसे ही जो प्रोसेस करते हुए जो है हम नंबर्स जो फाइनलाइज करते हैं। नंबर्स फाइनलाइज करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 3 6 4 7 2 5। ये जो है इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग जो है मतलब आप जो है कॉलम्स को जो है रीड कर लीजिए। तो रो वाइज जो है प्लेन टेक्स्ट को जो है राइट कर दीजिए और कॉलम वाइज उसको जो आप रीड कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सबको? जैसे हमने प्रीवियस केस में किया, आपको जो है कंटेंट को, प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को जो है रो वाइज राइट कर देना है। की में दिए हुए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कॉलम वाइज जो है रीड कर लेना है। वो जो आपका सीटी बन जाएगा, सीटी को डेस्टिनेशन एंड पे भेजेंगे और डेस्टिनेशन एंड पे जो है रिवर्स प्रोसेस कैरी करेंगे। तो किसी कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, तो आप इसको जो है बना लीजिए। जो भी इसका प्लेन टेक्स्ट है उसका सीटी जो है आप प्रिपेयर कर लीजिए। सीटी का एक्सटेंशन होता है आपका रिपीटेड रो कॉलम साइफर, आरआर जो है बोला जाता है। रिपीटेड रो कॉलम इन द सेंस रो कॉलम यूज फॉर ट्वाइस। तो रिपीटेड रो कॉलम के केस में क्या होगा, आपका प्लेन टेक्स्ट जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इस रिस्पेक्टिव प्लेन टेक्स्ट को हम जो है प्रोसेस करेंगे ट्वाइस। तो यहाँ पहले हम जो है आरसी रो कॉलम साइफर फर्स्ट टाइम इसको जो है इनपुट किए, ये जो है क्या कर रहा है, एक सीटी जो जनरेट कर रहा है। सीटी जनरेट करने के बाद में अगेन जो है रो कॉलम को इसको जो फीड किए सेकेंड टाइम, और फाइनली जो है जो आपका CT2 रहेगा उस रिस्पेक्टिव CT2 को जो है हम फाइनल CT जो है काम करेंगे। ठीक है, तो रो कॉलम ट्वाइस यूज कर सकते हैं, थ्राइस यूज कर सकते हैं। तो रिपीटेड रो कॉलम साइफर का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और डेफिनेट है रिपीटेटिवली अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेट है साइफर टेक्स्ट जो है आपका क्वालिटी साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा, स्क्रैम्बलिंग जो है उसमें ज़्यादा होगी, और एक स्पेसिफिक जो है थर्ड पार्टी इंट्रूडर है हैकर के लिए उसे जो है डिकोड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिकोड करने में जो है उसे टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग जो है स्टॉप करते हैं। आप अपना जो है टेस्ट वगैरह जो है अपीयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे और अगले जो है मॉड्यूल, अगले टॉपिक को जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।